माधवा कुंज विहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदनंदन ब्रज जनरंजन यशोदनंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदनंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद भज गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे
Srila Prabhupada. Jaya Gurudeva, Jaya Gurudeva, Gurudeva, Jaya Gurudeva. Harinam Sankirtan Mahotsav ki jai. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Maharaj ki jai. Nitai Gaur Premanande Hari Hari Bol. Hare Krishna, all the devotees, can you put your video on so that we can see whom we are talking to? Please put all the videos on. All videos should be on so that we can see at least the devotee darshan we can see. Venkateshwar Prabhu, Kalyani Mataji, Sujan Prabhu, video on kore din. Seeing the devotee is a very auspicious thing. We're just seeing their tilaka and they're a little more glorious. Maybe they are not listening to us, maybe. We have Sujan Chandra Prabhuji, we have Kalena Sarkar, we have Venkateshwara Gopal Prabhuji. Please put your video on. Okay, they will on. Start Prabhu, then slowly they ask them again. Yes. One has come. Very well. Balance two. Hare Krishna Prabhu or Sujan Prabhu? Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudiraye Nashprayeshu Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Nashtake. Srimad Bhagavatam 1.15.31. If you have books, please recite after me. Visoko Brahma Sampatya Chinna Dvedata Samsayaha Lina Prakritir Nera Guniyat Alingatvata Sambhavaha Vishoka Brahma Sampatya Sachinna Dveta Samsayaha Lina Prakritir Ner Guniyat Alingatvata Sambhavaha Visoko Brahma Sampatya Sachindvetata Samsa. Text 31. Okay, very good. I read again. Visoko Brahma Sampatya Sachindvetata Samsayaha Lina Prakritir Nirguniyat Alingatvata Sambhavaha. What meaning? Vishokaha, शोक से रहित, ब्रह्म संपत्या, आध्यात्मिक संपत्ति के अधिकारी होने से, सच्छिन्न, पूर्ण रूप से कटकर, द्वैत संशय, द्वैत के संशय से, लीन, संलग्न, प्रकृति, भौतिक प्रकृति, नैर्गुणियात, आध्यात्म में रहने से, अलिंगत्वात्, भौतिक शरीर से विहीन होने के कारण, असंभव, जन्म तथा मृत्यु से मुक्त. ट्रांसलेशन परपोर्ट बाय डिवाइन ग्रेस भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद. आध्यात्मिक संपत्ति से युक्त होने के कारण उसके द्वैत के संशय पूर्ण रूप से छिन्न हो गए. इस तरह वह भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों से मुक्त होकर आध्यात्म में स्थित हो गया. अब जन्म तथा मृत्यु के पाश में उसके फंसने की कोई आशंका न थी, क्योंकि वह भौतिक रूप से मुक्त हो चुका था. तात्पर्य, लंबा तात्पर्य है. ओके, आई नीड सम हेल्प फ्रॉम सम ऑफ यू टू कंक्लूड दिस. Okay, Hare Krishna, I will read first sometime. অল্প বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষেরা তাদের জড়দেহকে তাদের স্বরূপ বলে ভুল করে বলেই তাদের চিত্তে দ্বৈত জ্ঞানজনিত সংশয়ের উদয় হয়.
মূর্খ মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ অজ্ঞানতা হচ্ছে তার জড়দেহকে তার স্বরূপ বলে মনে করা। মানুষ তার দেহের সঙ্গে সম্পর্কিত সবকিছুকেই তার নিজের বলে মনে করে। এই ভ্রান্ত ধারণার ফলে আমি এবং আমার এই দ্বন্দ্ব ভাবে উদয় হয়। অর্থাৎ আমার দেহ, আমার আত্মীয়, আমার সম্পত্তি, আমার পত্নী, আমার পুত্র, আমার সম্পদ, আমার দেশ, আমার গোষ্ঠী এবং এই ধরনের শত সহস্র ভ্রান্ত ধারণার উদয় হয় এবং তার ফলে বদ্ধ যে বিভ্রান্ত। ভগবদ গীতার উপদেশ গ্রহণ করা হলে মানুষ নিঃসন্দেহে এই সমস্ত মোহ থেকে মুক্ত হতে পারে। কারণ প্রকৃত জ্ঞান হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবান বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণকে সর্বকারণের পরম কারণ রূপে জানা, সবকিছুই তার বিভিন্ন অবিচ্ছেদ্য অংশ রূপে গ্রহণ করেছিলেন। অংশরূপে তারই শক্তির প্রকাশ, শক্তি এবং শক্তিমান অভিন্ন। তাই এই বিশুদ্ধ জ্ঞান লাভ করার ফলে তৎক্ষণাৎ দ্বৈত ধারণা বিদূরিত হয়। অন্য কেউ পড়বে? সুজন প্রভু, কল্যাণী মাতাজি, জীবন পেটলা প্রভু, from Arjun, third paragraph. Where to? As Arjuna took up the instruction of the Bhagavad Gita. Somebody's there, Prabhu? Carry on. Yeah. As Arjuna took up the instruction from Bhagavad Gita, expert as he was, he could at once eradicate the material conceptions of Lord Krishna, his eternal friend. He could realize that the Lord was still present before him by his instruction, by his form, by his pastimes, by his qualities, and everything else related to him. He could realize that Lord Krishna, his friend, was still present before him by his transcendental presence in different non-dual energies. And there was no question of attainment of the association of the Lord by another change of body under influence of time and space. By attainment of absolute knowledge, one can be in association with the Lord constantly. Because in this present life, simply by hearing, chanting, thinking, and worshipping the Supreme Lord, one can see Him, one can feel His presence, even in this present life, simply by understanding the Advaya Jnana Lord, or Absolute Lord, through the process of devotional service, which begins with hearing about Him. Lord Chaitanya says that simply by chanting the holy name of the Lord, one can at once wash off the dust on the mirror of pure consciousness. And as soon as the dust is removed, one is at once freed from all material conditions. To become free from material conditions means to liberate the soul. As soon as one is therefore situated in the absolute knowledge, his material conception of life is removed, or he emerges from a false conception of life. Thus, the function of pure soul is revived in spiritual realization. This practical realization of Janvi can read from there. This practical realization of the living being is made possible due to just a minute. Due to his becoming free from the reaction of the three modes of material nature, namely goodness, passion, and ignorance. By the grace of the Lord, a pure devotee is at once raised to the place of the Absolute, and there is no chance of the devotees becoming materially entangled. One is not able to feel the presence of the Lord in all circumstances until one is endowed with the required transcendental vision made possible by the devotional service prescribed in the revealed scriptures. Arjuna had attained this stage long before on the battlefield of Kurukshetra, and when he apparently felt the absence of the Lord, he at once took shelter of the instructions of the Bhagavad Gita, and thus again he was placed in his original position. This is the position of Vishoka, or the stage of being freed from all grief and anxieties. Hare Krishna. ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुष्मन्तमेनं तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सुपदनिकं वन्देऽहं श्रीगुरुश्रुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवं च श्रीरूपं साग्रतां सागन रघुनाथान् विदन्तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगण
ललिता श्री विशाखान्वितां च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठभूतले श्रीमद् प्रताप स्वामी नित्य नामिने नमाचार्य पादाय नित्याय कृपा प्रदाय गौरगदाधामदाय नगर ग्रामताय हरे कृष्ण। सो वी जस्ट रेड विशोको। विशोका वी मीन्स विदाउट, शोका मीन्स, अच्छा हिंदी में बोला, शोक यानी भ्रम परेशानियां, विशोक परेशानियों से रहित। विशोक और वियोग यानी योग से युक्त वियोग, और वी का मतलब विशिष्ट, विशिष्ट योग या वियोग विशिष्ट शोक। ये प्रभात ने लिखा शोक से रहित कोई शोक नहीं। ये श्लोका सूत गोस्वामी सुना रहे हैं किसको? सौनक आदि ऋषि को। कह रहे हैं कि अर्जुन ने जब भगवान की याद की, भगवान के बारे में सोचा, पूरे कल्मश दूर हो गए। तो ये ऋषि मुनिगण, आप भी हमारे सामने बैठे हैं, अगर आप भी भगवान का चिंतन मनन करेंगे, आप भी शोक से मुक्त हो जाएंगे। हम सब भयभीत हैं, हम सब भयभीत हैं, सब भयभीत हैं, सबको परेशानी है। कल क्या होगा? और क्या हम सोचते हैं? हमेशा गलत सोचते हैं, हमेशा गलत सोचते हैं। अगर किसी का पति टाइम से घर नहीं आया तो पत्नी सोचती है कहाँ रह गया, कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, कहीं कुछ तो नहीं हो गया, कहीं कुछ तो नहीं हो गया। हम सब गलत सोचते हैं। क्यों गलत सोचते हैं? इसका कारण क्या है कि हमारे साथ एक दुर्घटना घटी हुई है, वो हमें याद आता कि ऐसा तो न हो गया हो, ऐसा तो न हो गया होगा, ऐसा तो न हो गया होगा। लेकिन अर्जुन यहाँ नैमिषारण्य में कहा जा रहा है कि जो अर्जुन है विशोक हो गए, कोई संताप नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई कामना नहीं। विद्या, भगवान है, मैं भगवान से हूं, ये विद्या है। मैं हूं, ये मेरा है। जैसे प्रभात ने लिखा, मेरा शरीर है, मेरे संबंधी हैं, मेरी संपत्ति है, मेरा है, वो है अविद्या। अविद्या यानी जो हमेशा नहीं रहती है, और विद्या यानी जो सतत रहती है, हमेशा रहती है। तो भक्त जो है इस अविद्या में नहीं रहते हैं। प्रभुपाद जी ने बहुत शानदार एग्जाम्पल दिया कि आप किसी से पूछो कि ये आंख किसकी है, तुम कहोगे मेरी आंख। ये मुंह किसका है? मेरा मुख। ये शरीर किसका है? मेरा। हाथ किसका? मेरा। सब मेरा मेरा मेरा। तो वो मेरा कौन है? उस मेरा के बारे में कोई नहीं जानता है। हम सब शरीर को ही आत्मा मान बैठे हैं, और शरीर को ही सब कुछ मान बैठे हैं, और इसीलिए हम अविद्या में हैं। अविद्या ऐसी चीज है जो आदमी को बाहर नहीं आने देती है। जिस प्रकार हम किसी कमरे में बंद हों और बाहर सूर्य हो, हम दरवाजा ना खोलें और हम कहें अगर सूर्य है तो मेरे कमरे में आके दिखाए, मेरे कमरे में आके दिखाओ सूर्य है तो। लेकिन हमें मालूम नहीं है सूर्य हमारे पास नहीं आएगा, हमको सूर्य के पास जाना पड़ेगा। प्यास मुझे है तो मुझे पानी के पास जाना पड़ेगा, पानी मेरे पास नहीं आएगा। बस यही है विद्या और अविद्या। और हम सब जो है अविद्या से भरपूर्ण है। अहम ईश्वर, अहम भोगी, अहम बलवान, अहम सुखी, एवरीथिंग आई, मी एंड माइन, यही विद्या है। और भगवान से लोग प्रार्थना क्या करते हैं? हे प्रभु मेरे अवगुण चितन धरो, समदरसी है नाम तिहारो, चाहे तो पार करो। हे प्रभु मेरे अवगुण चितन धरो। हमारे अंदर इतने अवगुण हैं। बहुत सारे लोग हमसे प्रश्न पूछते हैं
कि क्या मरणोपरांत हम भगवान के धाम जा सकते हैं? हम कहते जा सकते हैं, लेकिन तुम जाओगे ये तुम्हें मालूम है, मैं तुम्हारे बारे में नहीं कह सकता हूं। ये तुम्हें मालूम है, तुम जाओगे नहीं जाओगे। बोलो कैसे? मेरे अगर तुम सतत कीर्तन करते हो, सर्वेषु कालेषु भगवान का स्मरण करते हो, तो तुम क्यों नहीं जाओगे? वैकुंठ जाओगे, कौन तुमको रोक सकता है? लेकिन खाली इच्छा होना कि मैं वैकुंठ चला जाऊं, ऐसा तो नहीं होगा। तो हमें मालूम है हम कहां जाएंगे। कोई हमारे बारे में नहीं जान सकता है, हम अपने बारे में जान सकते हैं हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे। मेरी भक्ति कितनी तीव्र है। और इसलिए सुखदेव गोस्वामी ने कहा है परीक्षित महाराज को, तस्मात् एकेन मनसा भगवान सात्वतां पति श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येय पूज्य नित्यदा। भगवान का धाम जाना क्या है? उसके लिए वीजा चाहिए ना, उसके लिए टिकट चाहिए ना, उसके लिए कोई सहारा चाहिए ना। तो क्या कहते हैं? तस्माद, इस प्रकार एकेन मनसा, एक मन से। हमारे बहुत सारे मन हैं। हमारे कैसे मन है? जैसे अब इसमें मेरी कथा सुन रहे हैं आप। आप सोच रहे होंगे कथा के बाद मुझे कपड़े प्रेस करने हैं, मुझे गाड़ी ये लगानी है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। तो आप सुन रहे हैं कथा, लेकिन आपके विचार धारणा कहीं और है। हम कहां हैं? जहां हमारा ध्यान होगा। खाली मंदिर के सामने बैठकर या प्रवचन के सामने बैठकर कुछ नहीं होगा। हम वहां होंगे जहां हमारा ध्यान होगा। और इसलिए कहते हैं एकेन मनसा, एक मन से। हमारे मन में बहुत उद्गार होते हैं, बहुत सारी चीजें एक समय चलती रहती हैं, लेकिन एकेन मनसा क्या? भगवान सात्वतां पति ही। सात्वतां पति जो भगवान है, अगर वो बस जाएं, अब कैसे बसेंगे? श्रोतव्य, सुनिए। और आजकल क्या जमाना है, आजकल इंटरनेट का जमाना है, आप 24 घंटा सुन सकते हैं। श्रोतव्य और कीर्तितव्य। आप जो सुनेंगे आपको बोलना पड़ेगा, नहीं तो आप कीर्तन कहलाएंगे। जितना आप सुनते हैं उतना आपको बोलना पड़ेगा। श्रोतव्य कीर्तितव्य ध्येय, मेडिटेट भी करना है। कब? पूज्य, कैसी पूजा? नित्यदा, हर समय, हर पल, हर घड़ी। अभी तभी तो वैकुंठ जाएंगे ना। नहीं तो क्या भगवान हमसे डरते हैं? क्या यमराज हमसे डर जाएंगे? कौन डरेगा हमसे? जब तक हम भगवान का एक मन से, एक तन से, एकाग्रता से, प्रेम से, भाव से भगवान को ना अपनी आत्मा, अपना शरीर समर्पण कर दिया जाए, तो क्यों हमको लेके जाएंगे? हैं? आगे और कहते हैं, ये तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि। हे राजन, हे परीक्षित, सर्वात्मा जो भगवान हरि है, जो सबके ईश्वर हैं, उनका ध्यान करो। कैसे? श्रोतव्य, फिर सुनने से। सुनना तो लाजमी है। कैसे? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। तो श्रवण तो करना ही करना है। देखिए, अगर जापान में बच्चा पैदा हुआ तो जापानी बोलेगा, बांग्लादेश में पैदा हुआ तो बांग्ला बोलेगा। क्यों? श्रवणम। स्पेन में पैदा हुआ तो स्पेनिश बोलेगा। कैसे? श्रवणम। और फिर उसके बाद कीर्तितव्यश्च, और जो सुना उसके बारे में बात करनी है, वही बात करनी है। अरे कहाँ चले गए? गाना एक आगे वापस आ गए। सॉरी, वी लॉस्ट फॉर फ्यू सेकंड। स्मृतव्यश्चेयच्चता भयम, और स्मरण करने की इच्छा शक्ति हो। लेकिन बहुत सारे आप लोग कह सकते हैं, भाई हम इतने बिजी हैं, इतने बिजी हैं कि क्या किया जाए। बच्चों को बोलो तो मैं खेल में बिजी हूं। बालस्तावत क्रीड़ासक्त, बालक को बोलो मैं तो खेल में बिजी हूं। बालस्तावत क्रीड़ासक्त तरुणी तावत तरुणासक्त,
और जवान को बोलो अरे अभी तुम्हारे प्यार मोहब्बत के काम है भाई, अभी क्या बात कर रहे हो, अभी तो प्यार करेंगे, बाद में कर लेंगे। तरुणीस्तावत तरुण सक्त, वृद्धास्तावत चिंता सक्त। और जो वृद्ध हो जाता है बोला अरे यार सारी जवानी गंवा दी, भगवान का भजन नहीं किया, अब बुढ़ापे में थोड़ी होता है। और सही कह रहे हैं, बुढ़ापे में नहीं होता है। जब बचपन से उसकी लगन न लगे, बुढ़ापे में कुछ नहीं होता है। बुढ़ापे में तृष्णा और बढ़ जाती है। पहले हम अपने बारे में सोचते हैं, फिर बीवी या हस्बैंड के बारे में सोचते हैं, फिर बच्चों के बारे में सोचते हैं, फिर घर के बारे में सोचते हैं, फिर सोसाइटी के बारे में सोचते हैं, फिर देश के बारे में सोचते हैं। भगवान के बारे में सोचने का समय कहाँ है? श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मृतव्य चेताभयम। और अगर आपको अभय होना है तो कीर्तितव्य और श्रोतव्य करना होगा, नहीं तो भय नहीं जाएगा, भय बिल्कुल नहीं जाएगा। और अर्जुन कहते हैं कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम भयंकर त्वम याको दयमाणानाम अपभृगोशम श्रिते। हे भगवान, हे हरि, हे माधव, तुम अकेले हो जो भक्तों के हृदय में जो है अभय बना सकते हो, और कोई नहीं। और इस प्रकार अभय होना शास्त्रों का पढ़ना बहुत लाजमी है, तभी जाके आदमी अभय हो सकता है। वरना ये प्रकृति के जो 3 गुण हैं, इनसे छुटकारा पाना कोई आसान नहीं है। भगवान कह गए ना, याद है आपको, दैवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया माम एव ये प्रबध्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। माया को पार पाना इतना आसान नहीं है। भगवान की माया शक्ति है। अगर हम जेल में चले जाएं तो क्या जेलर हमको छोड़ देगा? हमारा दोस्त है क्या, छोड़ देगा हमको? नहीं। अब जेल पे एक बात मुझे याद आ गई। एक बार एक राजा अपनी जेल में गया, वो देखने लगा कि देखिए लोग कैसे रह रहे हैं, क्या रह रहे हैं। तो जब वो जेल में गया तो लोगों को पता चला, जेल पता चला आज राजा आ रहा है, जो कुछ मांगना मांग लो, जो कुछ मांगना मांग लो, जो कुछ मांगना मांग लो। सब ने अपने ध्यान बना कि मैं क्या मांगूंगा। तो पहले व्यक्ति के पास गया, राजा ने कहा बोलो क्या चाहिए? बोला मुझे सिर्फ 4 रोटियां मिलती हैं, प्लीज मुझे 6 रोटियां दे दो। राजा ने बोला जेलर को, कल से इसको 6 रोटियां मिलेंगी। दूसरे के पास गया, बोले क्या? बोले जी मैं कवि हूं, कविता लिखता हूं, लेकिन मेरे पास यहाँ कागज पेंसिल नहीं है, प्लीज उसका प्रबंध कर दो। तो राजा ने कहा इसको जो है कागज पेंसिल जितना चाहिए उसको दे दो। दूसरे पास गया, बोले क्या चाहिए? बोला साहब यहाँ मच्छर बहुत खाते हैं, अगर पंखा का इंतजाम हो जाए। राजा ने कहा कि इसके कमरे में पंखा लगाओ। इस प्रकार सब ने कुछ न कुछ मांगा। एक आखिरी था लल्लू पंजू। राजा ने कहा क्या चाहिए तुझे? बोला मुझे जेल से रिहा कर दो। राजा ने ठीक है तू जेल से रिहा कर दो। तो हमें मालूम नहीं है भगवान से क्या मांगना है। हम मांगते हैं धनम देहि, जन्म देहि, बलम देहि, बुद्धि देहि, विवेक देहि। और इस देही देही के चक्कर में भगवान हमको देही दे देते हैं, देह बॉडी, देही 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 देही। तो हमको ये मांगना में नहीं आता है। कल शिवरात्रि है, इंडिया में त्योहार थी। शिवरात्रि के मौके में शिव जी नारद को कहते हैं नारद, बड़ी असमंजस की बात है, लोग मेरी पूजा नहीं करते हैं, कोई मेरी पूजा नहीं करता, मुझको खुश करते हैं वरदान पाने के लिए। तो नारद ने कहा अरे शंभु तुम कितने भाग्यशाली हो, भगवान कृष्ण ने तुमको ये उपाधि दी है। बोला नहीं, भगवान कृष्ण मेरे से प्यार नहीं करते हैं। अगर मेरे से प्यार करते होते तो ये 3rd क्लास का मेरे को क्यों दिया? उनके दुश्मनों को मैं वरदान देता हूं, ये कैसे भगवान है? अगर भगवान मेरे से प्यार करते तो भगवान ये कार्य मुझको कभी नहीं देते। और नारद सुनो, कली में मैं जो जाऊंगा और मैं अद्वैत फैलाऊंगा। ये क्या प्रेम है भगवान का? तो नारद कहते हैं अरे तुम ही इस काबिल हो कि भगवान का काम कर सकते हो, इसलिए तुमको चुना गया है। तो कल शिवरात्रि है,
बहुत सारे अगर आप शिव भक्त हैं तो कुछ मत मांगिए बस हाथ जोड़िए, उनके दंडवत प्रणाम कीजिए और कीजिए, आपको ही सब कुछ होगा। मैं आपको एक और बात बताता हूँ, कभी कभी चीज़ें बाद में आ जाती हैं। एक बार मैं कलकत्ता से देहरादून आ रहा था और मैं ट्रेन में था, कालका एक्सप्रेस समथिंग थी। तो वहाँ क्या हो गया, वहाँ कुछ लोग थे, तो उन्होंने मुझे कहा, मैं ऊपर की बर्थ में था, बोले नीचे आ जाओ ताश खेलते हैं। मैंने कहा नहीं, मैं डिवोटी हूँ, मैं ताश नहीं खेलता। फिर थोड़ा आ जाओ ना 10 मिनट के लिए। मैं कहा नहीं मैं ताश नहीं खेलता। फिर बोला आ जाओ ना। अच्छा, मैंने कहा मैं फिर आधा घंटे खेलूंगा, ज़्यादा नहीं खेलूंगा, आधे घंटे, ज़्यादा नहीं खेलूंगा। मैं नीचे आया, आप नहीं मालूम इसको बोलते हैं, कुछ उनका नाम है, बस आप बैठे तो देखिए जो आदत पुरानी होती है ना वो कभी ख़त्म नहीं होती है। और बैठे और रात के 3 बजे तक ताश खेलते रहे। अब मुझे फिर गलानी हुई, मैंने कहा बाप रे बाप यार, मैं क्या करूं उनके साथ, मैं बेवकूफ़ हूं क्या। तो उनमें से एक आदमी था, वो जो है ये शांति वन वाले हैं ना, अगर आपको मालूम है, गायत्री परिवार है उनका। तो उनमें एक भक्त था, तो बोला ऐसा है आप हरिद्वार में रुकिए, मैं आपको गायत्री परिवार की जो माँ है उनसे मिला दूंगा। अब मैंने कहा ठीक है यार, अब इतना पाप तो हो ही गया, चलो किसी वैष्णव के दर्शन होंगे तो पाप खत्म हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है, ताश बंद की, भाई मुझे हरिद्वार में उतार देना, मैं माता जी को मिलने जाऊंगा। तो वो बंधु जो थे परिवार वाले, मुझे वहाँ उतारा, सामान उनके स्टोर रूम में रखा। मैं गया तो वहाँ भीड़ थी, करीब बहुत भीड़ थी, बहुत भीड़। उसके बाद उन्होंने जो है बैक डोर से मुझे जो है माता जी से मिलाया, मेरे नंबर आया, मैंने दंडवत प्रणाम किया। बोलो क्या चाहिए, क्या चाहिए। मैंने कहा माता जी आशीर्वाद दें, मुझे गुरु भक्ति मिले। माता जी का बहुत गुस्सा आया, बोला कौन इसको लेके आया, इसको मांगने भी नहीं आता, चलो। और उन्होंने वहां से धुतकार दिया मेरे को। अरे मैंने कहा मिले ना मिले यार, अब रात को ताश खेली थी ना इसलिए धुतकार मिली है, और कोई बात नहीं है। तो मैंने गुरु भक्ति मांगी, मुझे धुतकार मिला, लेकिन मैं दिल में खुश था कि हमसे दर्शन तो हो गया। कहने का मकसद यह है, हमें मालूम नहीं है क्या मांगना है। यहां जब श्रीमद् भागवतम शुरू हुई तो परीक्षित को पूछा गया, ये परीक्षित मुझे मालूम है तुम्हें 7 दिन का श्राप मिला है, लेकिन मेरी शक्ति है, तुम क्या दिव्य जीवी बनना चाहते हो या दीर्घ जीवी बनना चाहते हो? डू वांट टू लिव लॉन्ग और यू वांट टू लिव अ पर्पसफुल लाइफ? परीक्षित ने छूटे बोला, मुझे दीर्घ जीवी नहीं बनना, आई डोंट वांट टू लिव लॉन्ग लाइफ, आई वांट टू बी दिव्य लाइफ। और तब उनको भागवताम मिली। तो कल शिवरात्रि है, लोग मांगेंगे, शिव जी कुछ कहते रहे, मांगते रहते हैं, क्या करूं, मैं बहुत परेशान हूं और मुझे देना पड़ता है। तो शिव जी ने बोला नारद को, बताओ ये लोग मेरे पास क्यों आते हैं और भगवान इनको मेरे पास क्यों भेजते हैं? क्योंकि ये लोग भगवान को परेशान करते हैं, ये दे दो, वो दे दो, ये दे दो। भगवान कहते मैं दूंगा तुमको, मैं परेशान करूं, जाओ शिव के पास चले जाओ, वो देगा तुमको जो देना, हम नहीं देंगे तुम्हें। तो बोला जिसको भगवान अप्रिय होते हैं ना वो मेरे पास भेज देते हैं, और फिर मैं उनको देता हूं। और क्या देता हूं? क्षणिक, अंतवत्तु फलम तेसाम, क्षणिक, छोटा सा। तो मांगना भी एक बड़ी अच्छी प्रवृत्ति है। मांगे, हरि के नाम को मांगे, अपने दोस्तों से, अपने परिजनों से भगवान की कथा की याचना कीजिए कि कोई कथा सुनाओ, कोई कथा सुनाओ, कथा सुनाओ। यह है वो मांगना। बाकी तो क्या है, वेस्टेज और वेस्टिंग ऑफ द टाइम। तो ये तो था टेक्स्ट 31। 2 मिनट बाकी रह गए। ओ गॉड, व्हाट आई विल डू। नो, ये तो बहुत बड़ा है, 32 बहुत बड़ा है। चलो इसी पे 2 मिनट में ले लेता हूँ। तो कहने का मतलब क्या है, नहीं है? इंडिया की शिवरात्रि तो क्या करो, लास्ट हो। तो कहने का मतलब क्या है कि जन्म और मृत्यु से पार पाने के लिए भगवान का सहारा। जब जन्म हमारे वश में नहीं है,
मृत्यु हमारे बस में नहीं है। तो जन्म और मृत्यु के बीच का जो समय है हमारे बस में क्या होगा? हम तो अपने प्रारब्धों के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा अपनी डेस्टिनी बनाते रहते हैं, डेस्टिनी को बिगाड़ते रहते हैं। लेकिन लगन लगे हरि नाम की तो भव सागर तर जाए। जो अगर किसी को हरि के नाम की लगन लग गई तो भव सागर तो तारेगा तारेगा। लेकिन हमें मालूम होना चाहिए मेरी भक्ति कितनी दृढ़ है। क्या मुझे भगवान की लीलाओं का स्मरण हमेशा रहता है? क्या भगवान के दिए उपदेश मुझे याद हैं? क्या उन उपदेशों पे मैं चल रहा हूं, या चलने की कोशिश कर रहा हूं, या चलने की इच्छा जाहिर करता हूं? तभी तो हम पार पा पाएंगे। अदरवाइज दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या, भगवान कहते हैं मेरी माया को पार पाना बहुत मुश्किल है। और माया कैसी है? बहुरूप एवा भाति माया बहुरूपया। माया के अनेक रूप हैं। कभी बेटे के रूप में, कभी पति या पत्नी के रूप में, कभी बेटे के रूप में, कभी सास ससुर के रूप में, कभी घर के रूप में, कभी गाड़ी के रूप में, कभी कोई जो आपको या माउंट ब्लैंक पेन मिल गया ना तो उसके बारे में, कभी कहीं रोलेक्स वॉच मिल उसके बारे में। तो हम क्या कहते हैं, माया अनेकों तरीके से आ सकती है। हजारों तरीके हैं माया का आने के। लेकिन माया से छुटकारा वही पाएगा जो कृष्ण के परायण होगा। और तब ये होने के बावजूद भी किसी को आसक्ति नहीं होगी। ये होने के बावजूद भी आसक्ति नहीं होगी। भाई यही हमको प्रैक्टिस करना है। होते हुए आसक्ति ना हो, उसका उपयोग हो, उसका सदुपयोग हो। एक बार प्रभुपाद जी साइंटिस्टों को बहुत खरी खुटी सुना रहे थे, तो किसी ने बीच में बोल दिया कि प्रभुपाद आप माइक्रोफोन पे जो बोल रहे हैं ना, आप ये भी साइंस की देन है। आप सबको उल्टी सीधी बातें करते हो, ये देन है। तो प्रभुपाद जी ने कहा एक्सेप्ट दिस फेलो, he'll go Vaikuntha because he's helping me to glorify Krishna. He's okay. So एन प्रकार है ना, किसी भी जो हमारी भाषा जो कुछ भी हैं, अगर हम उसको भगवान के सेवा में लगा सके वो दिव्य बन जाती है। और यही तुम्हें करना है, ये तो एक्सपर्टीज है। अभ्यास योग युक्तेना चेतसा अन्यगामिना। देखिए अर्जुन की चेतना कहीं दूसरा नहीं गई है, अभ्यास के द्वारा। अभ्यास योग युक्तेना चेतसा अन्यगामिना परमं पुरुषम दिव्याम याति पार्थानुचिंतयन्। यहां अर्जुन पूरे गुणाकेश हैं जिन्होंने नींद को बस में कर लिया। नींद यानी अविद्या, अज्ञान। और इस प्रकार सौनका ऋषि आदि को समझा रहे हैं, इसकी उसको फंसने की कोई आशंका ही नहीं है। जब भगवान के परायण हो जाएगा वो कैसे फंसेगा? वो कभी नहीं फंस सकता है। फंसेगा वो जो भगवान से दूर हो। तो इस प्रकार आइए आज इन श्लोकों के द्वारा हम भी कुछ अपने जीवन में आध्यात्म के लिए एक कदम आगे बढ़ाने के लिए कुछ सोचिए, मेरे लिए क्या अच्छा है। सिर्फ हम अपने बारे में सोच सकते हैं मेरे लिए क्या अच्छा है, दूसरे के बारे में कहने से क्या फर्क पड़ता है। मेरे लिए क्या अच्छा है? श्रवण या कीर्तन या स्मरण या बंधन या पाद सेवन या साख्यम या आत्मनिवेदन, क्या मैं कर सकता हूं? और जो आप कर सकते हैं, जिसमें आप दक्ष हैं, निपुण हैं, वो कीजिए। भगवान स्वीकार करेंगे, स्वीकार करते ही हैं। ना करने का कोई मतलब ही नहीं है। तो आइए, आज कल शिवरात्रि का मौका है। भगवान शिव से जो टॉप क्लास वैष्णव हैं उनसे याचना करें कि मुझे कृष्ण स्मरण दें, कृष्ण भक्ति दें। एक बार अच्छा एक बोल देता हूं मैं। एक बार एक चोर था, चोर। उसका काम था चोरी करना, अपने परिवार को पालना। एक दिन उसको चोरी करने का कहीं मौका ही नहीं मिला, दिन भर भूखा रहा। शाम को शिव मंदिर में गया, और सब मंदिरों में दरवाजे होते हैं, शिव के मंदिर में दरवाजा नहीं होता। सिर्फ शिव जी के मंदिर में दरवाजे नहीं होते, कपाट। तो अंदर गया, उसने देखा कि यार ऊपर जो वो
तांबे की जो क्या बोलते हैं गगरी गगरी लटकी हुई थी, उसने आ हा यहाँ से तांबे की गगरी लेके जाऊंगा, 100-200 में तो बिकी जाएगी। लेकिन वो तांबे की गगरी काफी ऊपर थी। उसने क्या करूं, वो शिवलिंग के ऊपर चढ़ गया और उसने जैसे गगरी उतारी, भगवान से प्रश्न हो गए। बोला बेटे मांगो क्या चाहिए। बोला मैंने क्या गलती की। बोला आज तक लोग मेरे ऊपर दूध चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, फल चढ़ाते हैं, तू अकेला इंसान है जिसने अपने आप को मेरे ऊपर चढ़ा दिया। आशुतोष भगवान, और उसकी मनीषा पूरी हो गई। तो हमारे ऐसे भोले भंडारी हैं, सबको देते हैं, और अगर कृष्ण भक्ति मांगे तो जरूर देते हैं, उसमें कोई संशय नहीं है। तो इसके साथ ही मैं आज सोच के आया था कि मैं आज 2 दिन लूंगा, प्लीज एक्सक्यूज मी, ये बाचो बेगम है, छुपी नहीं होता तो मैं क्या करूं। हरे कृष्ण।